Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to take the next part of bioinorganic chemistry, and in this video we are going to do the heme proteins in the detail. And I just want to request everybody who is attached with us regarding the videos कि अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि मेरे से पढ़ के आपको कुछ समझ आ रहा है, आप कुछ गेन कर रहे हो, तो प्लीज़ रिवर्ट में आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और एंड में वीडियो के ज़रूर मेरे को बता के जाएं कि आपको कैसे समझ आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वी आर गोइंग टू टेक द हीम प्रोटीन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि हीम प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे पास, इट इज हैविंग Fe प्लस porphyrin ring, Fe and containing porphyrin ring. Okay, so in this the first example we are going to take, it is cytochrome. साइटोक्रोम्स। अब साइटोक्रोम बहुत तरह के हैं। There are three types of cytochromes. Okay, so firstly I just want to tell you it is a heme protein. Heme means Fe plus porphyrin ring is present, right? Fe plus porphyrin ring is present. The second thing, it act as electron carrier. It act as electron carrier, and active site of this is of cytochrome is Fe. ओके, Fe जो है, जो रिंग में प्रेजेंट था फॉरफायरिन में, दैट इज द एक्टिव साइट ऑफ साइटोक्रोम, राइट? एंड इट इज प्रेजेंट इन, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. Chloroplast and mitochondria, or you can simply say कि it is present in plants as well as in the human body. ओके, तो इट इज प्रेजेंट इन बोथ फॉर्म्स, प्लांट्स की फॉर्म में, प्लांट में भी प्रेजेंट है एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, एंड इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, और वी कैन से इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट. ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है. तो बेसिकली जो साइटोक्रोम्स होते हैं, इट इज ऑफ थ्री टाइप: साइटोक्रोम ए, cytochrome B, and third type is cytochrome C, right? Cytochrome A, cytochrome B, cytochrome C. So we can shortly write cytochrome in the form of CYT, cytochrome. Okay, तो now we have to draw the structure draw करने के लिए porphyrin ring draw करनी पड़ेगी. तो अभी तक मेरे को लगता है कि सभी बच्चों को porphyrin ring तो आ ही गई होगी बनानी. तो सेम वे में ऐसे पहले हमने रिंग्स बनानी है 4. ठीक है, ड्रॉ करो. अब मेरी तरफ नहीं देखना, अपने आप स्क्रीन को मत देखो, अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देखो कि आपको कितना गेन हुआ है. और अभी तक अगर किसी को ये नहीं आता तो इट इज़ वेरी बैड थिंग. आप लोग रिवाइज करया करिए चीज़ों को. तो दिस इज द थिंग कि अब हमने फॉरफायरिन रिंग बना ली है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट फॉरफायरिन रिंग. Fe is acting as the active site of this ring. Fe is present in the center. Metalloporphyrin हो गया क्योंकि metal attach है. Now what we have to do, the conjugated single double bonds कितने होते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. As I said earlier to you कि यहाँ पे हमारे पास 11 हमारे पास bonds होते हैं जो attach होते हैं. After this we have to do the linkage at the side groups. Side groups पे क्या क्या होता है अब देखते जाना ध्यान से. Here CH3 is there, here also CH3 is there, right? Here I have to write R1, here CH3 is there, R2, CH3 is there, and at this position both these positions are same: CH2, CH2, COO negative, CH2, CH2,
COO negative. So this is a structure of cytochrome and this is the basic structure. We can say this is the basic structure of cytochrome. Why I am writing basic structure? Because cytochrome is further divided into the three categories. What is A, what is B, what is C? We will see this in the next slide. ठीक है, तो firstly you have to remember this basic structure. इसी से ही हमारा आगे बनेगा जब हम R1 R2 डिफरेंट होंगे, उसी से ही सब्सटीट्यूशन डिफरेंट होने से हमारे पास ए बी सी टाइप के साइटोक्रोम्स बनते हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. यस, तो इफ R1 is CH2 double bond CH2 and R2 is basically C18H30OH. क्लियर? तो इट इज हीम ए. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज हीम ए कॉन्फ़िगरेशन. एंड इफ R1 इज इक्वल टू R2 एंड दैट इज इक्वल टू CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोथ द यूनिट्स आर सेम. ठीक है, तो दिस इज नोन एज हीम बी. आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर R1 R2 सेम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज हीम बी. एंड इफ R1 is this and R2 is this, then it is known as heme A, and it is found in cytochrome A, and both of these are found in cytochrome B. It is also present in myoglobin. It is also present in hemoglobin. Okay, स्ट्रक्चर देखे होंगे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के. अब कंफ्यूज नहीं होना, पहले मैं करवा चुकी हूँ, तो एक बार आप चेक कर लो कॉपी से जाके. तो दिस इज द सब्सटीट्यूशन इन द साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम ए, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में इस तरह का इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है. तो व्हाट अबाउट हीम सी? हीम सी में क्या होता है? देखो, हीम सी के लिए जो सब्सटीट्यूशन हमारी बनेगी, R1 इज इक्वल टू R2 एंड दैट इज इक्वल टू CH3 and this is attached with the sulfur of protein. ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन लगी होती है R1 इक्वल टू R2 and it is found in cytochrome C. And this is important for MCQs because sometime it is asked what is heme A, what is heme B. ठीक है, तो एक चीज मैं और रिपीट करना चाहूंगी, आप लोगों ने प्लीज इसको क्रैम नहीं करना, 2-3 बार पढ़ के छोड़ोगे आप, बिकॉज दिस इज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर. इसमें रट्टे वाली बात नहीं है. जब आप 2-3 बार ऑप्शंस को देख लोगे पढ़ने के बाद, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि क्या ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, क्योंकि सारी चीजों को रिमेंबर करना दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू. स्ट्रेस नहीं डालना माइंड पे. तो आप लोगों ने सिर्फ इसको 1-2 बार पढ़ के रीडिंग लेके छोड़ देना है. ठीक है, और फिर अपने आप ही आपको ऑप्शन देखने से याद आ जाएगा. नाउ इन दिस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, इनमें हमारे पास जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है Fe की, इट इज +3. एंड रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रिड्यूस फॉर्म क्या होगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ देयर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का? तो सी द ऑर्डर एज सच. ये पेपर में पूछ लिया जाता है और बहुत कॉम्पिटिटिव्स में आया भी हुआ है, नेट में भी पूछा गया है. साइटोक्रोम बी इज गोइंग टू डिलीवर it into cytochrome C, then cytochrome A, and it is going to deliver oxygen. This is the flow of electron कि जो cytochrome A है, B है, it is giving to C, C is giving to A, and A ultimately providing the electron and to the O2. अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो सिस्टम मैंने लिखा, ये कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो सिस्टम इन द रेस्पिरेटरी चेन. जो रेस्पिरेटरी चेन होती है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को सभी को पता होगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वहां पे होता है. तो दिस इज ड्यू टू द साइटोक्रोम. एंड जो साइटोक्रोम ए है, दैट इज बाइंडेड टू ऑक्सीजन. कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि विच साइटोक्रोम इज बाइंडेड टू द ऑक्सीजन. तो साइटोक्रोम ए बाइंड करता है. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो साइटोक्रोम बी है, its reduction potential is least than cytochrome C and cytochrome A. ठीक है, तो it is 0.003 volt and this is 0.021 volt and it is 0.4
3 वोल्ट। ठीक है, तो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। अब इसका क्या मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल का? अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि जितनी कम वैल्यू है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ओके, इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बड़ी जल्दी से, क्विकली। ठीक है, जितनी जल्दी देगा, ठीक है, उतनी ही जल्दी ये सी तक पहुंचा। अब सी की वैल्यू इससे कम है, इसका मतलब ये इसके कंपैरेटिवली अच्छा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। ठीक है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है तो उसके पास पावर होती है, इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि रिडक्शन पोटेंशियल से आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम डायरेक्टली, ऐसा ही हमसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। यस, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो देखो बुक्स भी यही बताती हैं कि नहीं पता, ना ही वो ड्रॉ करते हैं, बेसिक स्केलेटन लिख देते हैं बट एग्जैक्टली नहीं बता पाते। बट वी हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट साइटोक्रोम सी कि इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। 6 मीन्स कि Fe के आसपास हमारे पास 6 जगह पे पोजीशंस लगी होंगी। तो इट इज अंडरस्टूड यहाँ 4 जो पोजीशन है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन ऑफ फॉरफायरन रिंग। ये दो जगह जो बची हुई हैं वहां पे क्या आएगा? तो एज आई रिटन हेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। द 4 साइड्स जो यहाँ पे लिखी हुई हैं दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द नाइट्रोजन ऑफ फॉरफायरन रिंग। फिफ्थ साइट दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन, हिस्टिडीन नाइट्रोजन ऑफ हिस्टिडीन। And sixth site it is occupied by the sulfur of methionine. Methionine is also a amino acid. दोनों साइडों पे, एक साइड पे हिस्टिडीन होगा, एक साइड पे सल्फर लगा होगा, दैट इज ड्यू टू द मिथ्योनिन अमीनो एसिड, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल ये चीज है कि जो साइटोक्रोम सी है, ठीक है, ओवरऑल यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जो साइटोक्रोम सी है हमारे पास वो रेक्ट नहीं कर पाता बाय द कोऑर्डिनेशन। It can't react due to their coordination, and it reacts indirectly by electron transfer methods. What it means, मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ के 6 की 6 साइड्स इसकी फुल्ड हैं। जो लिगेंड लग सकते थे 6 साइड्स पे, जो 6 ही कोऑर्डिनेशन साइट इसकी मैंने मेंशन किए, तो ये फुल हैं। फुल होने की वजह से इट इज नॉट एबल टू रिएक्ट विद एनीथिंग एल्स। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे अभी आपने देखा ना कि इट इज ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन टू बी, देन cytochrome A and it is attached with oxygen, but it is transferring oxygen, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे पॉसिबल है, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि ये फर्दर किसी और लिगेंड के साथ अटैच हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द साइटोक्रोम सी। ओके, तो इट इज ऑल्सो इनर्ट। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसके ऊपर कोई साइट खाली नहीं है, ठीक है, कोई लिगेंड नहीं लग सकता, तो चाहे कोई भी लिगेंड आ जाए, CN आ जाए, CO आ जाए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पॉइजनिंग इफेक्ट आते हैं, तो ये भी अगर आ जाए तो ये रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इट इज इनर्ट टू ऑक्सीजन, inert to oxygen. It is not able to react with oxygen because all the 6 sites are occupied. And this question is very important, please listen carefully. All the 6 sites are occupied, that's why it is inert to oxygen, as well as, ठीक है, as well as write down another ligands like CN, CO which can show the poisoning effect in the body. Poisons हैं ये, ठीक है। तो this is all about the cytochrome C. Now we are going to take the cytochrome A. तो दिस इज अबाउट द साइटोक्रोम ए कि ये कहाँ बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि अभी आपने देखा कि जो चेन में फ्लो था इलेक्ट्रॉन्स का दैट इज लाइक दिस। ठीक है, साइटोक्रोम ए इज द लास्ट लिंक इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन।
चेन में ये एक लास्ट लिंक होता है ऑक्सीजन के साथ, डायरेक्टली बाइंड करता है और उसको रिड्यूस करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है और 6 साइट इसकी खाली है। अगर 6 साइट खाली है तभी इसके ऊपर कुछ लगाना, अगर इसकी सारी की सारी साइट्स ब्लॉक होती, ये साइट वेकेंट है, तो अगर ये साइट भी वेकेंट ना होती तो ये भी साइटोक्रोम सी की तरह बिहेव करता। तो अगर दिस इज वेकेंट देन इट इज ओनली पॉसिबिलिटी कि ऑक्सीजन इसके साथ अटैच कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो आप कि जो हमारे पास सी एन नेगेटिव है, ठीक है, सी एन नेगेटिव, इट इज नॉट एबल टू बाइंड, इट कांट बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन द मोर अमाउंट, इसके साथ नहीं कर पाता, बट इट बाइंड्स टू मेट हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मेट हीमोग्लोबिन? पहले तो इसको लिख लो कॉपीज पे कि जो मेट हीमोग्लोबिन होता है हमारे पास वो भी एक तरह का मेटालोफॉरफायरिन है, जिसमें जो आयरन है हमारे पास, आयरन इन द हीम ग्रुप इज इन Fe3 स्टेट, फेरिक स्टेट में है, नॉट एन Fe2 फेरस। ठीक है, 2 वाले को फेरस बोलते हैं, 3 वाले को फेरिक बोलते हैं। तो यहाँ मेट हीमोग्लोबिन में जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +3, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द Fe2 पॉजिटिव स्टेट विच इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में Fe2 होता है अगर आपको याद हो तो, बट मेट हीमोग्लोबिन में इट इज Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो जो मेट हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड अप नहीं कर पाता। ठीक है, लिख लो ये भी कि जो मेट हीमोग्लोबिन है इट इज नॉट एबल टू बाइंड विद ऑक्सीजन। क्यों नहीं कर पाता ऑक्सीजन को? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही अलग है। हीमोग्लोबिन होता वो तो करता है, बट मेट हीमोग्लोबिन इट इज नॉट एबल टू बाइंड विद ऑक्सीजन। अगर इसको नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये ना तो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है टिश्यूज तक, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, और इसका जो कलर होता है दैट इज ब्लूइश ब्राउन, ब्लूइश ब्राउन कलर होता है और बहुत थोड़ी अमाउंट में ये ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। ठीक है, अब कौन है जो इसको इसमें कन्वर्ट करता है? अब याद रखो कि जो NADH डिपेंडेंट एंजाइम होता है, एक NADH डिपेंडेंट एंजाइम, नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग बट दिस इज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। NADH डिपेंडेंट एंजाइम होता है जिसको बोल सकते हैं मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज, मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज। तो ये एंजाइम इसको इसमें चेंज कर देता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक मिनट में स्लाइड क्लियर करती हूँ। मेट हीमोग्लोबिन reductase, this is an enzyme which convert met hemoglobin बैक टू हीमोग्लोबिन। अब ये इसका काम है कि इसको वापस से हीमोग्लोबिन में चेंज करना। इन दिस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज देयर, इन दिस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज देयर। ठीक है, ये ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर सकता, ये कर सकता है। ये छोटे छोटे डिफरेंस हैं इसके। ठीक है, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। Now I will sum up all the things which I write in the last slide. Cyanide poisoning. Cyanide poisoning क्या होती है? दोबारा देखो ध्यान से। If Cn negative binds to, it binds to cytochrome A instead of ऑक्सीजन। हमने देखा था कि जो चेन थी वहां कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इट इज गोइंग लाइक दिस, सी से बी में, बी से सी ए में, ए जाता था ऑक्सीजन की तरफ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट इस तरह से हो रहा था। बट व्हाट इफ कि अगर बॉडी में साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम ए के साथ बाइंड कर जाए तो ऑक्सीजन नहीं कर पाएगा। हमें पता है क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड विच कैन बाइंड 200 टाइम्स मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये अगर बाइंड कर गया इसके साथ 6th कोऑर्डिनेशन साइट पे
तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन का तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज नॉट देयर। तो व्हाट हैपन्स, इसके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है, व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट, तो इन दिस वी हैव टू टेक, तो व्हाट इज द थिंग हेयर, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे एमाइल नाइट्राइट या फिर सोडियम नाइट्राइट का इंजेक्शन दिया जाता है पर्सन को। द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन इज इंजेक्टेड विद अमाइल नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट इंजेक्शन। ये इंजेक्शन क्या करता है, इट कन्वर्ट हीमोग्लोबिन इनटू मेट हीमोग्लोबिन, ध्यान से देखना, इट कन्वर्ट हीमोग्लोबिन इनटू मेट हीमोग्लोबिन। तो वो क्यों करता है मेट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड, अब देखो ध्यान से, मेट हीमोग्लोबिन नाउ कंबाइन विद CN नेगेटिव एंड नाउ इट इज रिमूव्ड, ये हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा अब, ठीक है, और इसकी जगह पे लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। मैंने बताया था कि जो CN नेगेटिव है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाता, बट मेट हीमोग्लोबिन के साथ बड़ा अच्छे से बाइंड करता है। फॉर डूइंग द रिमूवल ऑफ CN नेगेटिव वी नीड मेट हीमोग्लोबिन एंड दिस इंजेक्शन इज required for the conversion of hemoglobin into met hemoglobin so that the cyanide poisoning which is occurring in the body, it is removed with the help of this treatment. So this is all about the cyanide poisoning, and this is again very important thing. Small MCQs can be asked in the case of cyanide poisoning. Now there is a last part regarding the cytochrome P450. This is important. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है लास्ट मास्टर केडर में, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। P450 is present in plants, animal and bacteria. ये तीनों में हो सकता है, plant, animal and bacteria, and it absorbs at 450 nanometer. Whenever nanometer is given, it means UV absorption is there. UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा है वो, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स कहीं दिया हो तो दैट इज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इट एब्जॉर्ब एट 450 नैनोमीटर विच इज ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड दिस बैंड इज नोन एज सॉरेट बैंड। ये आप पहले कर चुके हो, हीमोग्लोबिन के केस में भी मैंने आपको करवाया था। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इट इज गिविंग द सॉरेट बैंड एंड ब्लू टू रेड शिफ्ट होती है यहाँ पे, ठीक है, सॉरेट बैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द वर्क, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, इट इंसर्ट्स, it act as a catalyst, write down, it act as a catalyst for the insertion of oxygen atom। ऑक्सीजन एटम की बात कर रही हूं, ठीक है, एक ऑक्सीजन, मोनो ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, हर जगह O2 पढ़ते हो आप, बट O2 नहीं, यहाँ सिंगल ऑक्सीजन एटम को ये इंसर्ट करेगा टू अदर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो कोई भी सबस्ट्रेट अगर आप ले लेते हो वहां पे वो एक सिंगल ऑक्सीजन को एंटर करवा सकता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450, ठीक है। सपोज करो अगर मैं कोई बॉन्ड ले लूं, जैसे RH लिख लिया, नाउ आई जस्ट वांट टू ऐड ऑक्सीजन एंड आई टेक साइटोक्रोम P450। तो ऐसी रिएक्शन शायद आपने पहली बार देखी होगी। तो दिस इज अ बायोलॉजिकल रिएक्शन जिसमें ये कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है और ये ऑक्सीजन इसके बीच में ऐड हो जाएगी, इंसर्ट करेगा मोनो एटॉमिक एटम, तो यहाँ तो लग नहीं सकता, ठीक है। RH तो कुछ भी नहीं होता, ROH होता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। तो सही रिएक्शन क्या होती है, दो प्रोटॉन ऐड होते हैं, साथ में दो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं और यहाँ से वाटर भी निकलता है, ठीक है। तो अगर मैं एक और मॉलिक्यूल लिख के दिखाऊं आपको, जैसे ये ले लिया मैंने, एल्डिहाइड लिया, तो एल्डिहाइड में क्या हो सकता है, अब आपको पता चल गया होगा, एक ऑक्सीजन और ऐड करनी है। अगर मैं लिखूं जैसे अल्कीन, अल्कीन के केस में इफ आई वांट टू ऐड दिस, तो साइटोक्रोम P450 you have to write as the catalyst। तो now what will happen, it is giving us epoxide। तो one oxygen atom can be, write down one thing, जो one oxygen atom है हमारा वो तो इंसर्ट हो गया, ठीक है, इंसर्ट हो रहा है ऊपर। जो सेकेंड ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज रिड्यूस टू वाटर, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ इट।
Now see the structure of for cytochrome P450. This is the porphyrin ring nitrogen. I am writing in short PR. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द फुल porphyrin ring. You can draw in your copies. नोट्स बनाते समय आप लिख सकते हो इसको. तो there are 4 nitrogens which is attached with Fe. Okay, so here Fe is present in +3 oxidation state, and here the two sides, one is attached with water and another is attached with sulfur of cysteine ring. Now whenever we want to add oxygen in any substrate, so what will happen, जब आप ऐसे ऐड करना चाहोगे इसको, तो इनिशियली इट इज इन द Fe3 प्लस स्टेट. एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने ले लिया तो नाउ इट इज चेंजिंग इनटू द Fe2 स्टेट. इट इज रिड्यूस्ड साइटोक्रोम. रिड्यूस्ड साइटोक्रोम Fe3 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन प्रोसेस, दैट्स वाई Fe2 पॉजिटिव बन गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से वी राइट रिड्यूस्ड साइटोक्रोम. ओके, तो जो ये रिड्यूस साइटोक्रोम जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है, किसको करेगा, देखो अब देखो एक मिनट. नाउ Fe2 पॉजिटिव अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, तो नाउ इट इज अगेन शिफ्टिंग इनटू दिस प्रोसेस एंड F2O 1 नेगेटिव इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म द सुपर ऑक्साइड आयन. सुपर ऑक्साइड आयन. हेयर बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का कितना होता है, 2. इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालोगे इट इज 1.5. तो अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, कम हो रहा है, तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, IR की बात हो रही है, दैट इज डिक्रीज्ड. क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट ऑफ के अपॉन म्यू, सॉरी रिड्यूस्ड मास. तो दिस इज द थिंग, अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड के ऑर्डर क्या है, के की वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, अगर ये कम होगा तो जो फ्रीक्वेंसी है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो भी कम हो जाएगी. ठीक है, FeO बॉन्ड की. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क इन द CSIR नेट. तो ये पूछा गया है वहां पे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये. ठीक है, तो अब आपके पेपर में इतना डिफिकल्ट नहीं आता, बट आई एम गिविंग यू द डिटेल. बट आपने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस एक बार पढ़ के छोड़ दो. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग. जो साइटोक्रोम P450 है उसी की बात हम कर रहे थे अभी. तो इट इज प्रेजेंट इन, राइट डाउन वन इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगेट टू मेंशन, इट इज प्रेजेंट इन किडनीज. ये किडनीज में प्रेजेंट होता है, और ये करता क्या है यहाँ पे, इट कन्वर्ट इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स, जो सॉल्युबल नहीं हो पाते किसी भी चीज में, इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स को वाटर सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स में चेंज कर देता है. इट इज प्रेजेंट इन किडनीज एंड इट कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स इनटू द वाटर सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स. वाटर सॉल्युबल, ठीक है, उसमें ऐड करने के बाद ये बॉडी से निकल जाते हैं. तो दिस इज वेरी important work of a cytochrome P450, and its molar mass which is given in some books is 50,000, 50,000. Okay, so Fe3 positive state, low spin, octahedral. Okay, so this is the composition of cytochrome P450. hopefully you enjoy the lecture. आपको कुछ अच्छा पढ़ने को मिला होगा. अगर आपने चैनल ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए. मिलते हैं एक नई वीडियो में. बाय बाय.